कैसा आया आपके पास? स्क्रिप्ट जब आया था, I'm generally a little picky with scripts. सबाज जब मैंने पिक किया था तो उसके बाद काफ़ी आज तक मुझे लोग कहते हैं कि why, you know. तो उसके बाद मैं थोड़ा सा और वो हो गया था कि यार you know there's a responsibility now on every actor and you know so मुझे जब स्क्रिप्ट आया तो I initially said कि नहीं I won't want to do this, you know, because of the character and novel का जब मैंने पढ़ा. नॉवल पढ़ा था आपने? मैंने नॉवल की जो समरी है, जो ऑडियो वो होती है, वो I You went through it. Yeah. And it was I thought Aswad was too toxic, you know, and I generally, and it has nothing to do with the script, I generally wanted to do for a bit because I had done Anna, I had done Sabat. I wanted to do character roles. Okay. I wanted to do, you know, I wanted to kind of experiment मैं करना चाहता था acting range के साथ. तो मैंने यही कहा था कि मैं ज़रा थोड़ा सा character roles करूँगा. And then हम कहाँ के सचते came and मुझे थोड़ा असवद के character में कुछ problems लगी तो मैंने कहा नहीं. But फिर you know we talked, उमेरा से भी बात हुई, मुमना भाभी से भी बात हुई, नीना से भी बात हुई और you know फिर me and Mahira discussed the script as well. Okay. And you know फिर हम लोग बैठे, फारूक भाई, हम सारे बैठे, we discussed it. Aswad was in the novels, Aswad is very very toxic. अच्छा. And certain things I didn't agree with Aswad. Like? You know. बता सकते हैं आप या अभी नहीं बता सकते? मैं अभी बताऊंगा तो वो फिर वो आगे हम देखेंगे. But we changed a lot. I had to put my foot down on a few things कि ये I won't do, you know. जैसे? Like you know, slapping and stuff and you know. But this is very good to know, Usman. मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने ये बात. See, the thing is, I feel, you know, with the current time. Yeah. आप अगर एक हीरो को ये करते हुए दिखा रहे हैं तो आप ये दिखा रहे हैं कि वो हीरो है, वो कर सकता है, तो तुम घर में क्यों नहीं कर सकते? And that's something that I don't agree with. There's a certain sense of responsibility and I just wasn't comfortable. And also the other thing was कि Aswad does not come from that mentality. Exactly. Aswad grew up with women in his house. Aswad was brought up by his mother. He grew up with his cousins, Marine and Mashal, you know. Not a lot of boys were involved in his life. Then when he grew up, he was sent abroad. वहाँ पे वो पढ़ा बड़ा, तो उसकी ये mentality नहीं हो सकती. और उसकी जो अम्मी है, जो हुमायूं नवाब का जो character कर रही हैं, वो कितनी, I think वो पूरे ड्रामे वो एक sensible voice है, you know. So there were scenes where they, you know, I had to, you know, kind of slap or do something like that, and I said no. Then we had to come up with a way where Aswad does show his anger without touching Mary. ठीक है. And I said we need to figure that out, you know. So वो एक चीज़ थी, and generally भी तो because and Nina also agreed and I think Maya also agreed कि अब because that's novel was written a while ago, so we need to change a few things here and there, and we did that. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, क्योंकि मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन बड़ी ज़रूरी है. वो ज़माना डिफरेंट था. अब आगे जाते हुए तो माँ बाप भी जो वर्ड्स यूज़ करते हैं बच्चों के साथ, यू हैव टू बी केयरफुल आप क्या बोल रहे हैं. सो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने ये बात शेयर की ताकि और लोगों को भी पता चले कि वो भी ऐसा स्टांस ले सकते हैं और ये चीज़ हमारे ड्रामों में नहीं दिखानी चाहिए. यू नो, फाइंड अ क्रिएटिव वे अराउंड इट. I mean, I also said this, and this is something I believe in, कि अगर आप मुझे एक विलन का रोल दे रहे हैं, who's an antagonist, जिसका आप ओपनली बता रहे हैं कि ये बुरा आदमी है, डू नॉट फॉलो हिज एक्शंस, व्हाट ही डज. अगर वो ये करेगा, मैं आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ गुड थिंग टू शो दीज थिंग्स. ठीक है, कुछ स्टोरीज होती हैं जो होती हैं, बट यू कांट शो अ हीरो डूइंग दीज थिंग्स. देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इट बिकॉज यू नो वी हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो द वर्ल्ड और उनको दिखाएं. और हम इस मीडियम से ही, एंटरटेनमेंट से ही वो बहुत चीज़ें दिखा सकते हैं. यू नो, वी कैन एजुकेट मासेस, बिकॉज अगर वो इतना फॉलो करते हैं कि मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम मेरीन के साथ गलत करो, दैट मीन्स यू हैव द पावर टू टेल देम कि ये मत कीजिए, ये गलत है, ये सही है. यू नो, सो उसमें थोड़ा था. और अभी भी Aswad gets angry, Aswad does
do a few things, but my point was कि मैं मेरी इतनी वो है ना मेरी वो है, बट मेरा ये था कि यार अगर मैं ये करूँगा तो मैं हाथ उस तरीके से मारूंगा नहीं, हाथ पकड़ लिया वो that was the most वो कम वो कर सकते थे या कुछ, बट I said no slapping, no choking, nothing like that. Okay. आपको लगता है डीप डाउन असवद मेहरीन से मोहब्बत करता है बट उसको खुद नहीं पता ये? इस चीज़ का जवाब एंड पे मैं मिलेगा आपको एंड पे दूंगा बिकॉज इस चीज़ की मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन मैं वो भी दे नहीं सकता बिकॉज अभी तक एपिसोड्स नहीं है. मे बी बाय द एंड दोबारा आई गेट इन टच विद यू एंड यू हैव टू आंसर बिकॉज मुझे लगता है कि उसको खुद रियलाइजेशन नहीं है, डीप डाउन इट्स मेहरीन जो उसके दिल में है, बट वील फाइंड आउट. अच्छा ये बताएं, बड़ा मज़ा आता है मुझे हम कहाँ के सच्चे थे देख के, कुछ उसमें एक अट्रैक्शन है कि देखने को दिल चाहता है. ऑफ कोर्स स्टार कास्ट बहुत अच्छी है आपकी और माहिरा की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है वो इतनी ज़बरदस्त है. असवद और मेहरीन कितने अभी तक बहुत कम सीन हुए, पाँच एपिसोड, मतलब एवरी टाइम वो दोनों सामने आते हैं स्क्रीन पे, यू कैन फील द केमिस्ट्री. ये ऑटोमेटिकली हो गया या आपने मायना बैठ के बात की, इसको वारूक प्रिंस साहब ने कुछ डायरेक्ट किया, कोई इसके पीछे है कहानी जो आप सुना सकते हैं? यू नो आई थिंक फारूक भाई हैज़ हेल्प्ड अस लॉट एंड ऑल्सो माहिरा, बिकॉज मैं माहिरा से कभी पहले मिला नहीं था और हम लोग जब सेट पे मिले तो वो शी सो easy to work with and she makes you so comfortable कि आप you become comfortable and then we used to discuss the scenes a lot. Okay. जब हम लोग बैठते थे सीन से पहले तो मैं फारूक भाई माहिरा या कुबरा के साथ जब होता था तो मुझे जो एक बात बहुत अच्छी लगी इस सेट की कि हर बंदा was open to debate about the script, about the characters, क्या हो रहा है सीन में. मतलब इसमें वो नहीं था कि अच्छा चलो जल्दी ख़त्म करो दूसरा सीन करना ये करना. हम बैठते थे सीन में डिस्कस करते थे असवद को क्या करना चाहिए, मेहरीन को क्या करना चाहिए, मशल को क्या करना चाहिए. और आई थिंक वो चीज़ जो है ना वो नज़र आ रही है बिकॉज आपने बाकायदा बैठ के डिस्कशन की और डिस्कस किया कि ये कैरेक्टर ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है. तो देयर इज अ रीज़न, समझ आपको भी आ रही है. हाँ, और एंड आई थिंक एवरीबडी ऑन सेट, जब मैं आया था तो मैं किसी को जानता ही नहीं था सेट पे. इस्लामाबाद में तो ये था कि आई न्यू अ लॉट ऑफ पीपल. तो वो सबने, और अगर आप जितना कंफर्टेबल होते हैं उतना आप ज़रा ओपन हो जाते हैं और वो करते हैं. तो आई थिंक ये सारी चीज़ें दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन. तो मायरा ने, मैंने सुना है मायरा ने कहा कि आप शुरू में बहुत रिजर्व थे, फिर मायरा ने कहा भाई उस्मान ऐसे नहीं काम चलेगा. हाँ, ये लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे कि मैं चुपचाप बैठा रहता था कोने में बिकॉज मैं जानता नहीं था और मैं जब नहीं जानता किसी को तो मैं बहुत वो रिजर्व सा होता हूँ. तो फारूक भाई भी बहुत मजाक उड़ाते थे कि फारूक भाई की एक बड़े मज़े की आदत है, वो जब डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो हर वक्त जो है वो मजाक बहुत करते हैं. वो लतीफ़े सुनाएंगे ये करेंगे तो वो लतीफ़े भी सुना रहे होते तो मैं बस हल्का सा हंसता था तो वो कहते थे यार मेरे लतीफ़ों पे तुम हंसते ही नहीं. ये तो वैसे बुरी बात है. हाँ, नहीं मैं बहुत वो आई वाज वेरी शाय. तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आई थिंक वो खुलना शुरू हुआ. बट नाउ यू अब जाके आप जरा शोर मचाते हैं बिकॉज यू सेड मैं ऑफ स्क्रीन बहुत फनी बंदा हूँ, मैं ये स्क्रीन पे बड़ा सीरियस नजर आता हूं. मुझे पता नहीं क्यों लोग समझते हैं मैं बहुत सीरियस हूँ. मैं आई एम वेरी फनी. कैन यू ब्लेम अस? हमें नजर नहीं आ रहा होता कुछ भी. अच्छा पता है क्या, आई हैव गॉटन दीस रोल्स ऑफ दीस सीरियस पीपल, दैट्स प्रोबब्ली व्हाई. तो आप इतने सीरियस बैठते हैं. हाँ, इंटरव्यू में वो है बट वो तो आज हम कोशिश करते हैं हम थोड़ी आपकी फनी साइड दिखाने की कोशिश. 2-3 मैंने सवाल रखे हैं आपकी कास्ट पर, उसमें बताइएगा. अच्छा फारूक साहब का मैंने सुना है वो आगे हर सीन में कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज जरूर कराते हैं और वो ज़्यादातर ना वो ब्लॉकिंग बहुत अच्छी कराते हैं. वो कहते हैं कि यार मुझे नहीं चाहिए एक कैरेक्टर वहाँ बैठा एक वहाँ बैठा बात करें. मुझे चाहिए मूवमेंट चाहिए. मुझे ऑर्गेनिकली जो कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं आप कभी भी अभी हम इंटरव्यू में बैठे हुए हम लोगों को फॉर्मल बैठना है, अदरवाइज जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. मैं पानी की बोतल उठा के पानी पी रहा हूँगा, मैं ग्लास में डाल रहा हूँ, मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, बात कर रहा हूँ. तो वो फारूक भाई का बड़ा होता है कि मुझे सिंपल प्लेन बोरिंग बैठे हुए बात करते हुए कैरेक्टर्स नहीं चाहिए. तो वो ब्लॉकिंग पे बहुत फोकस करते हैं और वो फिर उनके पास आप आएँ कि फारूक भाई ये ठीक कहते अच्छा चलो बैठते हैं इस पे और वो बाकायदा ही सिट्स विद यू. बट कोई सीन हुआ है ऐसा जिसकी आप बता सकते हैं कि आप लोग ये सोच के उन्होंने इम्प्रोवाइज करा और चेंज ही कर दिया कुछ ना कुछ अभी जितना कुछ हो सका? काफ़ी कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि ये था बट उन्होंने ये कराया? हमारा एक सीन है जो आगे एपिसोड में आना है
जो बहुत वो उस तरह लिखा हुआ है कि वो कुछ होता है और वो, लेकिन अब वो आगे की एपिसोड में तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन उसमें नहीं, अभी 2-3 एपिसोड्स हैं, तो उसको जिस तरीके से उन्होंने चेंज करके इंटर कटिंग करके और स्लो मोशन में बनाया है, आई मीन हम लोग सोच भी नहीं सकते थे।